My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, a Christian responsibility is very huge. मसीही जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ही बड़ा है It is not an ordinary role, और एक साधारण रोल नहीं है ये, and it is one role which is being misinterpreted on a greater level. और एक जो कार्य जो है वो गलत फहमी पैदा किया हुआ भी है, Because many people go to church, क्योंकि बहुत से लोग कलीसिया में जाया करते हैं they attend worship, और वो आराधना में शामिल होते हैं, they also say that they believe in Jesus Christ, और वो ये भी कहते हैं कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, and they also do a lot of service. और बहुत सी सेवाएं भी वो करते हैं। At the same time, उसी समय में we should understand whether all of them belong to the category of believers. क्या वो सभी लोग विश्वासियों के भाग में आते हैं कि नहीं। There is an acid test for that, और उसके लिए एक एसिड की परीक्षा की जाती है, or a test to identify whether we are all believers. और एक ऐसी परीक्षा की जा सकती है कि समझने के लिए कि क्या वो विश्वासी हैं कि नहीं। It is recorded in Gospel according to John chapter 14 verse 12. और ये बात यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 12वें वाक्य में लिखा गया है। And this verse is mostly misinterpreted. और ये जो वाक्य है कई बार गलत रीति से लिया जाता है। It is our responsibility to understand them. That is why I quite often say that it is our responsibility to read our word of God every day. और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़े, It has to be read sequentially. और उसे एक सही रीति से हम उसे पढ़े। It has to be continuous. और निरंतर रीति से उसको पढ़ना चाहिए। It is very easy to pick up one verse from the entire Bible and misinterpret it. और कहीं से भी एक वचन लेकर उसे गलत रीति से समझा भी जा सकता है। Today we will look at one verse 12. और आज हम 12वें वाक्य को देखेंगे। This is in continuation with an interaction between Jesus and his disciples. और ये जो वाक्य है उसके निरंतरता में है जब यीशु मसीह अपने चेलों से वार्तालाप कर रहे हैं। The verse is like this. और वचन इस प्रकार है, Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these he do, because I am going to the Father. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, Yes. ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। If this verse is taken separately, यदि इस वचन को हम अलग से ले लें, it can give various meanings. तो फिर ये बहुत से अलग अर्थ देंगे। But if it is read in continuity, लेकिन एक क्रम में हम पढ़े तो it will give you a very different meaning. तो फिर ये बिल्कुल ही अलग अर्थ देगा। Verse 12 says that, और 12वां वाक्य कहता है, whoever believes in me. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। The first criteria is we are supposed to be believers. पहला चीज ये है कि हमें विश्वासी होना बहुत जरूरी है। It is not addressed to specific group of people. ये केवल कुछ झुंड के लोगों को नहीं कहा गया है। It is not addressed to people who are missionaries. और ये उन सेवकों के लिए नहीं कहा गया है। It is not addressed to church growing people. और ये कलीसिया में जाने वाले लोगों के लिए नहीं कहा गया है। It is told to everybody who believes in Christ. और ये उन सभियों के लिए कहा गया जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। I do not know what is your belief. मैं नहीं जानता कि आपका विश्वास क्या है, But Bible says that it is better to believe in Jesus Christ. लेकिन बाइबल कहती है कि ये अच्छा होगा कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, Because one who believes in Jesus Christ believes in God. क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पिता परमेश्वर पर भी विश्वास करेगा। The second thing is, और दूसरी बात ये है, one who believes in Christ will also do the works that I do. और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो भी यीशु मसीह के कार्यों को करेगा। That does not mean that he will be doing all miracles that Jesus Christ did. इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्मों को किया वही वो भी करेगा। It is not just
a replica of whatever Jesus Christ did on this earth. और जो कुछ भी परमेश्वर यीशु मसीह ने किया वही चीजें इस संसार में वो भी करेगा, ऐसा नहीं है। In verse 11, और 11वें वाक्य में हम देखते हैं, it reads like this: इस प्रकार पढ़ते हैं, Believe in me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on the account of the work themselves. मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और Yes. पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। Whatever Jesus Christ did on this earth, और जो कुछ यीशु मसीह ने इस संसार में किया, be it miracles, चाहे वो आश्चर्य कर्म हो, be it teaching, भले वो शिक्षा हो, be it transforming a person, भले वो एक व्यक्ति को रूपांतर करना हो, he always directed his glory to the Father in heaven. इन सभी बातों में उन्होंने अपने पिता परमेश्वर की ही महिमा की है। He directed all glory and honor to the Father. और सारी महिमा और आदर अपने पिता परमेश्वर को ही दिया है। He even said that I have come here on a purpose assigned by the Father. और वो ये भी कहते हैं कि मैं इस संसार में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक काम दिया गया है पिता परमेश्वर के द्वारा, And he did it. और उसने पूरा किया। So my dear brothers and sisters, इसलिए है मेरे प्रिय भाई बहनों all believers, और सारे विश्वासियों, we are also supposed to direct our life towards Jesus Christ. हम भी अपने जीवन को यीशु मसीह की ओर लेकर जाना है। Which means we need to be indicators pointing towards Jesus Christ. इसका अर्थ है कि हमें सूचक बनना है हर एक कामों को करते समय यीशु मसीह की ओर। When people look at us, और जब लोग हमें देखते हैं we should be able to show them Jesus Christ. तो फिर हम उन्हें ये दिखा पाए यीशु मसीह है करके। We should enable them to recognize Jesus Christ. और उन्हें मदद करना चाहिए पहचानने की यीशु मसीह है। When we talk, और जब हम बात करते हैं, our words should point towards the glory and honor of Jesus Christ. हमारे शब्द जो है यीशु मसीह की महिमा और स्तुति के लिए ही होना चाहिए। When we see, और जब हम देखते हैं, or when we do any other activity, या फिर कोई दूसरा काम जब हम करते हैं, let us understand that there are people watching us. ये समझ लीजिए कि लोग यहाँ हमें निरंतर देखते हैं। We may not know that, शायद हम नहीं जानते but होंगे, people do recognize that. लेकिन लोग इन बातों को पहचानते हैं। Are we pointing all glory and honor towards Jesus Christ? क्या हम सारे कामों के द्वारा यीशु मसीह को दिखा रहे हैं कि नहीं? That was what Jesus Christ did on this earth. और यही बात यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया। Or if we say that we are believers, और यदि हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, we will also do the same. हम भी वैसे ही करेंगे। We will also direct all authority and honor to Jesus Christ. हम भी सारे अधिकार और आदर यीशु मसीह की ओर ही संकेत करेंगे। How is your understanding? कैसा है आपका समझ? How is your life? आपका जीवन कैसा है? It is time that we analyze ourselves. ये समय है कि हम अपने आप को जांच कर देखें। As believers, एक विश्वासी होने के नाते am I pointing towards Jesus Christ? क्या मैं लोगों को यीशु मसीह की ओर संकेत कर रहा हूँ? Or people looking at me and recognizing that Jesus Christ is God? और क्या लोग पहचान पा रहे हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है? When the people look at me, are people able to understand that Jesus Christ can cleanse us from all sins and unrighteousness? और जब लोग मुझे देखते हैं तो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि यीशु मसीह मेरे सारे पापों को धो सकते हैं करके नहीं? That is our responsibility. वो हमारा उत्तरदायित्व है। That is why Christ says that और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, whoever believes in me will also do the works that I do. और जो कोई भी मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। This is only possible when you believe in Christ. ये तभी हो सकता है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करें And he in you and you in him. और वो आप में और आप उसमें बने रहे। तो May God bless you with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।